This is lecture 2 for Pol Science 1 and you're watching By the Law. Today we will be completing chapter 6 of Pol Science 1, that is Judiciary. This is a very basic topic and scoring as well. In this lecture, we will be covering judiciary's role or its functions, importance of the independence of judiciary, and lastly, the most important topic, that is the doctrine of judicial review. Now, starting with the question, what is judiciary? It is the third organ of the government, as we saw in the previous lecture of separation of powers, that there are three organs of government. So, judiciary is the third organ. In India, Supreme Court is the highest judicial forum and the final court of appeal. All these lines are very important for the MCQ questions, so just listen patiently and try to remember these points. So, as the Supreme Court is the highest forum, the law declared by the Supreme Court becomes binding on all the other lower courts. So, no court can deny कि मैं Supreme Court के decision को नहीं मानूंगा. Courts are referred to as the guardians of the Constitution, guardians of people's rights. This was decided in the case of Marbury versus Madison, which is a case of 1808. You can quote this case law in your answer for scoring marks. So this is judiciary, and now when it has such an important position of securing rights of people, then it is very important, it becomes very important that it does not have any pressure over it. क्योंकि अगर कोई pressure होगा तो judiciary अपने डिसीजंस जो है, जजमेंट्स जो है, वो बिना किसी टेंशन के, बिना प्रेजुडिस के, बिना बायस के नहीं दे पाएगी और जस्टिस इम्पार्ट नहीं हो पाएगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर एग्जिस्ट्स एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी. अब जुडिशरी को इंडिपेंडेंट कैसे बनाया जाता है वो देखने से पहले उसके फंक्शंस पे नज़र डाल लेते हैं. So, the judiciary discharges 5 major functions. First, it is a protector of rights. Second, it interprets and applies the laws made by the legislature. Third, it is also a court of record. Fourth, it discharges the advisory function. And fifth, it conducts judicial inquiries. पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, तो मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. बट पॉइंट नंबर 3, 4 एंड 5. पॉइंट नंबर 3 फर्स्ट, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. तो सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट जो है वो एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है एज पर आर्टिकल 129 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये है कि जो भी डिसीजंस हायर कोर्ट के द्वारा दिए जाएंगे वो एज एन एविडेंस, एज अ जजमेंट, एज अ प्रेसिडेंट रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं, ताकि अगर वैसा ही कोई सिमिलर केस आगे आता है या उससे रिलेटेड कोई केस आता है तो इन रिकॉर्डेड जजमेंट्स को रेफ़र करके ईज़िली जजमेंट दिया जा सके. इसीलिए इन सारे कोर्ट्स का एक फंक्शन होता है कि ये सारे जो जजमेंट्स हैं ये रिकॉर्ड करते हैं, एंड इसीलिए जुडिशरी को अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है. Advisory function. Now the executive can go to the court and ask its advice on the legal matters. For example, president जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास किसी लीगल या स्टेट मैटर के एडवाइस मांगने के लिए. तो जुडिशरी जो है वो ये फंक्शन भी डिस्चार्ज करती है. नाउ कंडक्ट्स जुडिशियल इंक्वायरी. आप लोगों ने सुना होगा कि एक कमीशन बैठा जिसमें एक जज को उसका हेड बनाया गया और किसी इम्पॉर्टेंट मैटर को उस कमीशन ने इन्वेस्टिगेट किया. तो ऐसे कमीशंस जो है वो इंक्वायरीज़ कंडक्ट करते हैं और जजेस को, जुडिशरी के जो पार्ट हैं जजेस, उनको इसका हेड बनाया जाता है. तो दे ऑल्सो discharge the function of conducting various inquiries in various matters which are important or various grave incidents which require judicial inquiry. There are a few more miscellaneous functions which I will be providing you in the notes, so you can read it from there.
Now, why do we need an independent judiciary? What are the reasons behind it? So, as per Dr. P. Sharan, independence of judiciary is a cornerstone of every democratic government. So judiciary की position कुछ इस तरह होनी चाहिए कि it can enable the judges to give judgments without any fear or favor, यानी bias भी ना हो और डरे भी ना. अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, किसी भी प्रेशर में नहीं होगी, तो वो अपने फंक्शंस को अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएगी. इसीलिए वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी. नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, हाउ टू मेंटेन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. So the constitution itself provides its answer. Choice and qualification of judges. अब जो जजेस को चूज़ किया जाता है, उनका जो मोड है, उनका प्रोसेस जो है जजेस को चूज़ करने का, वो बहुत डिफ़िकल्ट बनाया गया है, जिससे impartial जजेस, ऑनेस्ट एंड लर्नड जजेस, मेनली लर्नड एंड इंटेलिजेंट जजेस को ही सिलेक्ट किया जाता है. और उनकी क्वालिफ़िकेशंस भी हाई रखी जाती है, यानी उनका एक्सपीरियंस लेवल ज़्यादा होना चाहिए. उनको परखा जाता है, उसके बाद ही किसी को जज बनाया जाता है. तो अगर ऐसा कोई जज सिलेक्ट होता है तो वो अपना फंक्शन पूरी ऑनेस्टी से, पूरी एफिशिएंसी से डिस्चार्ज करेगा. सेकंड पॉइंट, सैलरी एंड प्रिविलेजेस. ना हम लोगों ने सुना है कि जजेस को बंगला दिया जाता है, गाड़ी दी जाती है, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइड की जाती है उनको. तो ये इसीलिए दिया जाता है ताकि वो किसी के भी इन्फ्लुएंस में, या कोई अगर उनको ब्राइब दे के अपने फेवर में जजमेंट पास कराना चाहता है, तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, ब्राइबरी, करप्शन और इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए उन्हें एडिक्वेट सैलरीज़ और इस तरह के प्रिविलेजेस दिए जाते हैं पहले से ही, ताकि वो इसकी लालच में आकर किसी के फेवर में जजमेंट ना पास कर दे. रिमूवल ऑफ जजेस. नाउ एक जज को उसके ऑफिस से निकालने का जो प्रोसेस है उसे इम्पीचमेंट कहा जाता है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट बनाया गया है, लेंदी बनाया गया है, क्योंकि एक जज को अपने ऑफिस पे रहने की सिक्योरिटी होनी चाहिए. उसको डर नहीं होना चाहिए कि मुझे कभी भी निकाल दिया जाएगा जॉब से. इसीलिए ये प्रोविज़न लाया गया है. तो जो यूजुअल मेथड है वो लेजिस्लेचर के पास होता है. लेजिस्लेचर के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी जज को रिमूव कर सकता है ऑन टू ग्राउंड्स, ऑन द ग्राउंड ऑफ करप्शन और इनएफिशिएंसी ऑफ परफॉर्मिंग द फंक्शंस. तो ये दो पॉइंट्स को प्रूव करना पड़ता है लेजिस्लेचर में, तभी कोई जज रिमूव किया जा सकता है. एंड इट रिक्वायर्स 2/3 मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. अगर 2/3 मेजॉरिटी दोनों हाउसेस की कहती है कि हाँ ये जज इनएफिशिएंट है या करप्ट है, इसे रिमूव कर दिया जाना चाहिए, तभी एक जज को इम्पीच किया जा सकता है. The tenure of the judges is very important with regard to their independence and efficiency. It should be neither too long nor too short. क्योंकि अगर पीरियड शॉर्ट होगा, टेन्योर शॉर्ट होगा, तो सिक्योरिटी नहीं होगी. एंड अगर बहुत लंबा होगा तो इट विल एनेबल अ करप्ट जज टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. वो उस ऑफिस पे जमा रहेगा बहुत लंबे समय के लिए. तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के उनका टेन्योर डिसाइड किया जाता है. यूएसए में किसी जज के गुड बिहेवियर को देख के उनका टेन्योर डिसाइड किया जाता है, बट इंडिया में जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल 65 ईयर्स एंड 62 ईयर्स रिस्पेक्टिवली. यानी सुप्रीम कोर्ट में 65 ईयर्स एंड हाई कोर्ट में 62 ईयर्स का लिमिट है. नेक्स्ट पॉइंट है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी. यहाँ पे मिस्टेक है, सेपरेट नहीं है, इट इज़ सेपरेशन ऑफ जुडिशरी. अब जैसे कि हमने पहले लेक्चर में देखा सेपरेशन ऑफ पावर्स, उसमें बताया गया था कि मॉन्टेस्क्यू ने कहा था कि तीनों ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को सेपरेट किया जाना चाहिए. इसीलिए जुडिशरी को भी सेपरेट रखा गया है. जुडिशरी के पावर्स, जुडिशियल पावर्स जुडिशरी के पास ही है. एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के पास ये पावर्स नहीं दिए गए हैं. लास्टली, नो लीगल प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट. तो इंडिपेंडेंस को बनाए रखने के लिए एक रूल इस्टेब्लिश किया है कि कोई जज अगर रिटायर हो जाता है तो वो उसी कोर्ट में आके प्रैक्टिस नहीं कर सकता, क्योंकि
क्योंकि वो पहले से जज था, तो अगर वो किसी दूसरे जज के सामने आता है और वो किसी केस को आर्ग्यू करता है, तो उस जज के दिमाग में एक ऑलरेडी फॉर्म्ड इमेज है कि ये एक्स जज है, तो वो जो भी बोल रहा होगा वो सही बोल रहा होगा। इस तरह से केस बायस हो सकता है, इसीलिए ये रूल इस्टेब्लिश किया है कि उस एरिया में वो जज प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस एट ऑल। उनको कहीं भी प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि वो टॉप लेवल के जज हो चुके होते हैं, इसीलिए। Now, these are the following short notes which come in the examination. Need for independence of judiciary, how to maintain independence of judiciary, write a note on the role of judiciary and the doctrine of judicial review. Now, lastly, the doctrine of judicial review. Review मतलब फिर से जांच करना, examining it again. Judicial review is a power of the High Court and the Supreme Court to declare a law as ultra vires. Ultra vires का मतलब होता है किसी लॉ को नल या वॉइड डिक्लेयर कर देना। अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। इसी पावर को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। बट दिस पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू रेस्ट्स विथ द सुपीरियर कोर्ट्स ओनली, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। जुडिशियल रिव्यू का पावर जो है बहुत ही अच्छी तरह से सोच समझ के यूज़ किया जाना चाहिए, इसीलिए लोअर कोर्ट्स को ये पावर नहीं दिया गया है और हायर कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट को ही दिया गया है। In the case of Keshav Nanda Bharti versus State of Kerala, judicial review was declared as a basic structure of the constitution. इस केस में बताया गया है कि जुडिशियल रिव्यू का पावर कोर्ट से कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। So you can include all the points which I have written in my slides, तो आपको आसानी से मार्क्स मिल जाएंगे। यही सारे पॉइंट्स को आपको अपने आंसर्स में इंक्लूड करना है, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, और मैं नोट्स प्रोवाइड करने वाली हूँ डिस्क्रिप्शन में, सो यू कैन डाउनलोड इट। Either you can take the screenshot of the slides and write it on in your own words, or you can refer to the notes which I will be providing to you. सो एंड केशव नंदा भारती केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगी, सो you will become familiar with the basic structure doctrine, which is very important for you in Pol Science 1 as well as constitutional law and various other subjects. So this was chapter 6. Notes will be provided soon, so stay tuned and keep watching By the Law, because we fuel your wings.